کو بتائیں ابر رحمت کہیں زحمت نہ بن جائے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے فصلوں پر بیماریوں کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ماہرین نے گندم، آلو اور آم کے کاشتکاروں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے علی ریاض۔ دوسرے پانی کے وقت بارش کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے گندم، آم اور آلو پر بیماریوں کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کا کہنا تھا کہ گندم پر رسٹ اور آم پر پھپھوندی اور آلو پر لیٹ بلائنڈ کے حملے کا خدشہ ہے۔ کسان حملے کی صورت میں فوری فنجی سائیڈ کا سپرے کریں۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اسپاٹ نظر آتا ہے یلو رسٹ کا تو فوراً اس کے لیے جنا کرنا ہوگا سپرے وغیرہ فنجیسائڈ کا۔ اور اسی طرح آم کے باغات میں بھی یہ جو موجودہ موسم ہے وہ پاؤڈری میلڈیو کے لیے بھی سازگار ہے، اس کے لیے بھی کاشتکاروں کو احتیاطی طور پہ بھی اس پہ جنا سپرے کریں۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ مزید بارش کی صورت میں فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ پہلے جیڑی آئی ہلکی ہلکی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ فصلاں ٹھیک تھی گئی، ہن اگر تیز آئی تو وال نقصان ہے فصلاں کی تے بھی۔ بارش آئی ہے فصل کے لیے فائدہ مند ہے، اگر مزید بارش ہوئی تو فصل کے نقصان دہ نمی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ ماہرین نے کاشتکاروں کو روزانہ کی بنیاد پر فصلوں کا معائنہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاولپور میں رجسٹرار تحصیل آفس روڈ پر پائپ لائن پھٹ گئی، سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، شہریوں کو مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں رجسٹرار تحصیل آفس روڈ پر پائپ لائن پھٹ گئی، ہر طرف پانی ہی پانی، شہری مشکل میں پھنس گئے۔ لائن پھٹی پی ہے، وڈی سیور تھی اپنا لائن جی پانی والی سپلائی والی ہے وہ پھٹی پی ہے۔ پہلے بھی پھٹ گئی تھی، روز پھٹ جاتی ہے۔ اور یار کالا سا بند کر گیا ہے، اور ٹیپ شیپ ولیٹ بند کر گیا ہے، ور رات پانی لینے والے نواں تھی گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پانی کے باعث نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سر بالکل، ابھی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں بچا کے ان جو پھٹے والے ہیں بیچارے، ان کے اندر سے کرسیوں پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ رجسٹرار آفس جیسی اہم جگہ پر مسئلہ فوری حل کیا جائے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ادھر ملتان میں لینڈ ریکارڈ سسٹم آن لائن ہونے کے باوجود مسائل کم نہیں ہوئے، رجسٹریاں تاخیر سے ملنے پر شہری پریشان ہیں۔ وجوہات کیا ہیں بتا رہے ہیں مہر عمران اپنی اس رپورٹ میں۔ لینڈ ریکارڈ آن لائن ہونے کے باوجود رجسٹریاں تاخیر سے ملنے لگیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی ہفتے چکر لگانے پڑتے ہیں، رجسٹری برانچ کے اہلکار فضول اعتراض لگا کر پریشان کرتے ہیں۔ تھوڑا سا نا اگر تعداد بڑھا دی جائے کمپیوٹر کی تو یہ اور بھی رش کم ہو جائے گا اور عوام کو پریشانی بھی مشکل تقریباً کم ہو جائیں گی۔ دوسری جانب سب رجسٹرار سٹی صاحبزادہ محمد ظفر کا کہنا تھا کہ رجسٹری برانچ میں بہت رش ہے، ایک دن میں 150 کے قریب رجسٹریاں آتی ہیں، فوری طور پر رجسٹری انتقال دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ تقریباً 100-150 رجسٹری روز ہوتی ہے، اور اگر ایک رجسٹری پر 5-7 منٹ بھی لگیں تو وہ پھر شام ہمیں ہو جاتی ہے یہاں تک، لیکن اب کوئی بندہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کرتے، دوسرے دن پہ نہیں رکھتے۔ شہریوں نے فوری طور پر رجسٹری کی فراہمی ممکن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ بایو میٹرک رجسٹریشن اور ٹیکسز نامنظور، ساؤتھ پنجاب بھر کی موٹرز کار ڈیلر ایسوسی ایشن تنظیموں کی ملتان میں ہنگامی پریس کانفرنس۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب بھر کی موٹرز کارز ڈیلرز ایسوسی ایشن تنظیموں کے عہدیداران نے ملتان میں پریس کانفرنس کی، کہا گاڑیوں کی بایو میٹرک رجسٹریشن اور ٹیکسز سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ بیسیکلی مسئلہ ہم سب کا اکٹھا ہے اور ایک ہی مسئلہ ہے، جس طرح گورنمنٹ ڈیلی یہ کام کر رہی ہے اور جس طرح یہ ڈیلی ٹیکسز لگا رہی ہے اور کبھی مذاق ہو رہا ہے FD کو کم کر دیتے ہیں، اس کے بعد کمپنیاں 2-3 لاکھ روپیہ ان سے قیمت بڑھوائی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ کچھ عرصے بعد وہ FD کو دوبارہ لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ٹیکسز کو، اور یہ اب جیسے کہہ رہے ہیں جی بایو میٹرک کا ایک سسٹم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ لینے والا اور دینے والا دونوں کا نام لکھیں گے، تو جب اگر اس کا دونوں کا نام لکھ دیں گے تو ہم سب تو شو روم بند کر دیں میرے خیال میں۔ موٹر کار ڈیلرز کا کہنا تھا کہ کاروباری لوگ بہت مشکل میں ہیں، ٹیکسز کے خلاف جلد جنوبی پنجاب بھر میں ہڑتال کریں گے۔ یہ حکومت باقی آپ کے سامنے ہے جو کچھ کر رہی ہے، یہ تو ٹیکسز کے اوپر جو کچھ کر رہی ہے عوام کے نوالا بھی چھین لینا چاہتی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس اور FD، یہ سارا کچھ یہ چاہتی ہے کہ یہ کاروبار بند ہو جائے، لیکن ہم تاجر یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، ہر پلیٹ فارم پہ ہم احتجاج کریں گے، کالز دیں گے
और अपना गला दबने नहीं देंगे। मोटर कार डीलर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत अवाम के मुंह से निवाला छीनना चाहती है, अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन खत्म करवा कर रहेंगे। इन्होंने कहा कि वो अपना कारोबार बंद नहीं होने देंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बहावलपुर के किसानों की दुहाइयां, कहते हैं गल्ला मंडी में खाद होने के बावजूद उन्हें नहीं मिल रही। वो किससे गिला करें, किससे मुंसफी कराएं? महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के काश्तकार यूरिया खाद के लिए रुल गए, लेकिन इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे उनकी बेबसी का तमाशा देखने में मसरूफ है। तंग है असी सारे आबादियां खत्म थी चुकी हैं, कपाही सारे गंदम जो बिल्कुल खत्म थी गए। बहुत परेशान है। किसानों का कहना था कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही, किससे गिला करें और किससे मुंसफी करवाएं। गल्ला मंडी में खाद मौजूद है लेकिन इन्हें नहीं दी जा रही। DRC ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੇਚੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 2200 ਘੱਟ ਲੁਕਾ ਤੇ ਬੈਠਨ ਵੰਡਨ ਦੇ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਪੰਡੇ ਦੇ ਪਈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦੇ ਟਾਟ ਚਵਾਵਾ। काश्तकारों का मजीद कहना था कि हुकूमत उनके साथ जुल्म कर रही है, सिर्फ मनपसंद अफराद को खाद देना कहाँ का इंसाफ है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। अब कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना कहर ढाने लगा। मुल्तान में एक शख्स जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्तान में सबसे ज्यादा 52 केस रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना शिद्दत अख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान 103 केसेस रिपोर्ट, जबकि मुल्तान में एक शख्स जिंदगी हार गया। मुल्तान में 52 अफराद कोरोना की लपेट में आए। रहीम यार खां में 19 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। डीजी खान और बहावलपुर में 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लोधरा, भावल नगर और मुजफ्फरगढ़ में 3 अफराद मुहलक वायरस का शिकार बने। खानेवाल में 4 और विहाड़ी में कोरोना के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। लिया में 2 और राजनपुर में कोरोना का 1 मरीज सामने आ गया। तिब्बी माहिरीन का कहना था फौरी वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा तैयब सैफ, मुल्तान। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, नमाजियों को एक बार फिर करना पड़ेगा सख्त पाबंदियों का सामना। इबादत महदूद कर दी गई हैं। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में कोविड SOPs नाफिज करने का फैसला किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की 5वीं लहर कहर ढाने लगी, पाबंदियां फिर से लौट आई। NCOC के इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद और इबादत गाहों के लिए जरूरी कोविड प्रोटोकॉल नाफिज किया जाएगा। बहुत खुशी है कि आपके मस्जिदें बंद नहीं हो रही, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। नमाजी हजरात हैं कि आपस में जो फासला है उसको बरकरार रखें और हो सके तो मास्क की पाबंदी करें। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि मस्जिदें खुली हैं और नमाजियों को भी चाहिए कि वो SOPs का ख्याल रखें। NCOC के मुताबिक मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाजत होगी, जबकि नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम होगा। इबादत गाहों से कालीन हटाने और नमाजियों के दरमियान 6 फीट समाजी फासला लाजिम करार। NCOC के मुताबिक नमाजी घरों से वजू करके मसाजिद का रुख करें, जबकि हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। नमाज जुम्मा का खुतबा मुख्तसिर, जबकि खुले मकामात पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। हुकूमत की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है NCOC, उसने ये डिसीजन लिया है कि लोग जो है वो घर से वजू करके आएँ, सफ़े हटा दें और वैक्सीनेशन करवाएं और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वही मस्जिदों में आएं ताकि कोरोना को रोका जा सके। ये हमारी सबसे ज़्यादा इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हुकूमत ने जो फैसला किया जी घर से वजू करके आएँ और मस्जिद में आएँ, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है। हुकूमत का जो फैसला है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इज्तिमाई तौर पर जो हमारे नमाजी हजरात जो भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए 6 फुट का फासला होना चाहिए। इसके अंदर हमारा फ़ायदा है, हमारे बच्चों का फ़ायदा है, हमारे घर वालों का फ़ायदा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ताहम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं तो वायरस से मुकम्मल निजात मिल सकती है। विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, कई हफ्तों से सिरिंजें खत्म, शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मरीज ज्यादा किलोमीटर दूर से सिरिंजें लाकर टेस्ट कराने पर मजबूर हो गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा विक्टोरिया अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। आउटडोर लेबॉर्टरी में कई हफ्तों से सिरिंजें खत्म। पहले मैं यहाँ टेस्ट पे आके गई थी, यहाँ हर चीज मौजूद थी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं। क्या लाए, कहाँ से लाए? सिरिंज लेके आए, बाहर से लेके आए, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है। टेस्ट करवाने के लिए मरीज आधा किलोमीटर दूर से सिरिंजें लाने पर मजबूर है। शहरी अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर फट पड़े। इधर नहीं मिली थी ना, फिर इधर से फिर बाहर से लेकर आए। मर्दों खवातीन का कहना था कि सिरिंजों का मसला सिर्फ मौजूदा दौर में ही दरपेश है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मामले का नोटिस लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
सानह मरी जैसा वाकया दोबारा ना हो, मुल्तान समेत सूबे भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम, मुख्तलिफ इदारों के ताउन से हंगामी हालात पर नजर रखी जाएगी। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। सानह मरी जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिए गए। फोकल पर्सन PDMA का कहना था मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर हंगामी हालात में इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बुनियादी मकसद डिजास्टर और हंगामी सूरत हाल पे नजर रखने के लिए और इन टाइम कह लें कि इन पे काबू पाने के लिए। इसके अलावा इस सेंटर पे जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अदारों के जो कह लें कि अमला और स्टाफ के लोग 24/7 यहाँ पे बैठेंगे और वो मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में होंगे PDMA के में जो है जिला लाहौर में जो है कंट्रोल रूम के साथ। रेस्क्यू 1122 कलमा चौक के स्टेशन इंचार्ज नईम चंद का कहना था कि तमाम रेस्क्यू एहलकार हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, ये इमरजेंसी सेंटर DOC जिले इंतजामिया और PTMA के ताउन से बनाया गया है, जिसका बेसिक मकसद किसी भी इमरजेंसी फ्लड या मौसम के हवाले से कोई भी इमरजेंसीज या इस तरह की नागहानी आफत होती है तो उसमें मुतलका इदारों के साथ मिलकर हमने बर वक्त रिस्पॉन्स करना है। रेस्क्यू 1122 जिस तरह आपको पता है पहले भी 24/7 हर वक्त तैयार रहता है। अब हम PDMA और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर इस जो सेंटर बनाया गया इसको भी हमने फाल बना दिया है। इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में महकमा अनहार, वासा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों के नुमाइंदगान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। कैमरामैन नईम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर के महकमा सेहत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुलाजमीन के ट्रांसफर और नई जगह पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी मुलाजिम को बिला इजाजत ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से इजाजत लेना जरूरी करार दे दिया गया। जनूबी पंजाब भर के महकमा सेहत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुलाजमीन के ट्रांसफर और नई जगह पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी मुलाजिम को बिला इजाजत ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन में अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ खानेवाल मुजाहिद कलीम का मुजफ्फरगढ़ में तबादला हो गया। मुजाहिद कलीम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ जिला को चंद हफ्तों में कबल ही मुल्तान डिवीजन में शामिल किया गया है। तबादले के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ खानेवाल की सामी खाली हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं इस हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ खानेवाल मुजाहिद कलीम का मुजफ्फरगढ़ तबादला कर दिया गया। मुजाहिद कलीम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुजफ्फरगढ़ तैनात। मुजफ्फरगढ़ जिले को चंद हफ्तों कबल ही मुल्तान डिवीजन में शामिल किया गया। आपको बताएं मुल्तान में साबिक MNA राना शौकत हयात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम मुस्लिम लीग नून के MPA राना एजाज अहमद नून के वालिद थे। साबिक MNA राना शौकत हयात नून दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। मरहूम मुस्लिम लीग नून के MPA राना एजाज अहमद नून के वालिद थे। मरहूम PTA रहनुमा और साबिक MPA रईस महबूब अहमद के ससुर थे। दहशत गर्दों के सामने हथियार नहीं डालेंगे, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दबंग ऐलान। कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ताउन करें। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खराब मैशियत विरसे में मिली, जिसके बायस IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। $20 अरब का जो खिसारा पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, वो खिसारा उसको पूरा करना मईशत में वो सकत नहीं थी। हमने मदद ली, चीन से मदद ली, सऊदी अरब से मदद ली, अरब इमारात हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की। वजीर खारजा का कहना था कि बिलावल भुट्टो 27 फरवरी को मार्च के लिए कराची से रवाना होंगे और तहरीक इंसाफ इसी तारीख को पंजाब से सिंध मार्च लेकर जाएगी। मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह 27 फरवरी को वो वहां से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि सूबा बनाने के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को खतूत लिख दिए हैं। अपोजिशन ताउन करे, सियासत ना करे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब सूबा कोई सियासी जमात तनहा नहीं बना सकती। PTI के पास 2/3 अक्सरियत होती तो सूबा कब का बन चुका होता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करें, सूबा कल ही बन जाएगा, उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट। मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह की रिहायशगाह पर रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा तहरीक इंसाफ तनहा नहीं बना सकती। अगर तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत होती तो सूबा कब का बन चुका होता। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे, सूबा कल बनवा दूंगा। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम होकर सूबा नहीं बनवा सके। गिलानी साहब ने कहा कि नहीं, हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो मैंने उनसे इत्तफाक किया, मैंने कहा मुझे भी सूबा चाहिए। सवाल ये है, सूबे के लिए मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, क्या पीपल्स पार्टी वोट देने को तैयार है? राणा साहब ने कहा क्या नून लीग वोट देने को तैयार है? मैं आज कहता हूं, मैं बिल लेके आता हूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे, सूबा मैं कल बनवा देता हूं। वजीर खारजा का कहना था कि मुल्क बचाने के लिए IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ी। नून लीग $20 अरब का गैप छोड़कर गई। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या थी? दिवालिया होने के करीब थे। चीन जाना पड़ा, सऊदी अरब जाना पड़ा, अरब इमारात जाना पड़ा, उनसे हेल्प लेनी पड़ी, IMF जाना पड़ा, कड़ी शराइत माननी पड़ी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। शाह महमूद का मजीद कहना था कि गैस और तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी हैं। हमारा मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि महंगाई से है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। तालीमी बोर्ड के जरिए तमाम इंटर स्पेशल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 66.62% रही। मुल्तान में तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम इंटर स्पेशल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 66.62% रही। स्पेशल इम्तिहानात का दाखिला 8092 तलबा और तालिबात ने भिजवाया था। जनूबी पंजाब के तालीमी मैदान से अच्छी खबर है। पंजाब असम्बली ने नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमिक्स के तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इदारा मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में नए कैंपस खोलने के लिए मजीद फैकल्टी का इजाफा किया जाएगा। तमाम कैंपस में सोशल साइंसेज, आर्ट्स, कानून, नेचुरल साइंसेज और उर्दू, इस्लामियात, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन के दाखिले किए जा सकेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत पहले से मंजूर फैकल्टी में दाखिले होंगे। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस फरवरी से नए तालीमी साल का आगाज करेगा। वुमेन यूनिवर्सिटी में समाजी रवादारी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए तरबियती सेशंस का इनेकाद किया जाएगा। मुआशरे से तशद्दुद के खात्मे के लिए तालिबात को तरबियती सेशन दिए जाएंगे। आपको बताएं, इस हवाले से वुमेन यूनिवर्सिटी में समाजी रवादारी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए तरबियती सेशंस का एहतमाम किया जाएगा। मुआशरे से तशद्दुद के खात्मे के लिए तालिबात को तरबियती सेशंस दिए जाएंगे। तालिबात को अमन कायम करने के लिए फिरका वारियत को खत्म करने के बारे में आगाही दी जाएगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी और बच्चों की रौनकें लग गई हैं। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए पुरुमीद बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम लोग स्पोर्ट कम्प्लेक्स जिम्नेजियम में मौजूद हैं और जिम्नेजियम में मुख्तलिफ किस्म की गेमें खेली जाती हैं। यहाँ पे बैडमिंटन की जो है प्रैक्टिस जारी है। मैदान में हैं नौजवान और अपने आप को गरमा रहे हैं। 4 बजे से लेकर शाम 4 से लेकर 12 बजे तक जो है यहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कोच भी मौजूद हैं। सर बताइएगा किस तरह से प्रैक्टिस हो रही है, तैयारी हो रही है बच्चों की और अपने खेल में उन्होंने आगे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो हमने ट्रायल्स अभी हमारे हुए थे पंजाब गेम्स के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गए हैं पंजाब गेम्स। तो फिर से हमारा प्रैक्टिस सेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो इंशाल्लाह अब जैसे ही कोरोना के कोई बहाली का कोई खबर मिलती है तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से पंजाब गेम्स होगी। अभी तो हम प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट है, तो नेक्स्ट मंथ से हमारी शायद नेशनल चैम्पियनशिप भी हो, जूनियर्स की, सीनियर्स की। तो इसके लिए फिर हमने एक ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक।
تو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ پریکٹس سیشن سٹارٹ ہوتا ہے. پریکٹس میچز جاری ہیں. پنجاب گیم جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں, دوبارہ شروع ہوں گی. کرونا لاک ڈاؤن اگر ختم ہوتا ہے, SOPs جو ہیں ان کی ختم ہوں گی تو اس کے بعد سٹارٹ ہوگا. آپ بتائیے گا کیسے محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کھیل بھی رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ آ کے, ورزش وغیرہ ہو رہی ہے, پریکٹس ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بڑی اچھی گیم ہے اور ہمارے کوچ ہمیں بہت زیادہ پریکٹس وغیرہ کرواتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے یہاں آ کر. سارے دن کی تھکاوٹ جو بھی ہوتی ہے پڑھائی کی اور اس کے علاوہ جو ورک لوڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر آ کر ریلیکسیشن ہوتی ہے. اچھے دوست ہے, اچھی کمیونٹی ہے, اچھا گیم ہے, سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ ہے یہاں پہ, اور ہمارے یہاں پہ انیس بھائی نے بہت اچھا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے اور بڑا اچھا یہاں پہ آ کے کھیلنے کو لگتا ہے. بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے. اپنی پریکٹس جاری رکھی ہوئی ہے پلیئرز نے اور یہاں پہ اپنے آپ کو فزیکلی اور جسمانی طور پر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سردی کے موسم میں ہلکی بارش نے بہار نگر کے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا. شہریوں نے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سموسوں اور پکوڑوں کے پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. مزید جان لیتے ہیں قاسم علی شیخ سے. قاسم بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں, شہری کیسے محسوس ہو رہے ہیں؟ جب بالکل سردی اور بارش کا موسم اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ سموسے نہ کھائے جائیں, تو شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں رخ کر لیا ہے سموسہ پوائنٹ پر, جہاں پر شہری بارش کے اور سردی کے موسم میں سموسے کھا کر جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. میں آج اگر بات کروں بھاون نگر کی, تو آج بھاون نگر کا موسم جو انتہائی خوشگوار ہے, سہانا ہے. صبح سے ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے, جس کی جو ہے موسم نے مزید جو ہے وہ اس کا حسن کو جو دوبالا کر دیا ہے. یہاں پر شہریوں سے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا جی, بھاون نگر کا موسم بڑا خوشگوار ہے, کیا کیا کھا رہے ہیں؟ جی آج ماشاءاللہ صبح سے موسم بہت خوشگوار ہے, بہت ہی پیارا موسم ہے, اور بارش ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے ہوا کے ساتھ, جس کے بعد پھر گرما گرم سموسے پکوڑے کھانے کے لیے ہمارے آئے ہیں. ہم دوست بھی سارے ساتھ ہیں, تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ ساتھ ہی ہمارے بھاون نگر کے مشہور ہے سموسے پکوڑے, جن سے ہم سموسے پکوڑے کھانے کے لیے 50 سال سے تقریباً یہ ہمارے بھاون نگر میں سموسے پکوڑے بنا رہے ہیں. تو پھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو رہی ہے؟ جی بالکل گپ شپ ہو رہی ہے, بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ, تو بہت موسم کو بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ, تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ تھے بھاون نگر کے شہری جن کا کہنا ہے کہ آج صبح سے جو ہے بھاون نگر کا جو موسم ہے انتہائی سہانا ہے. سردی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے موسم کو 4 چاند لگ گئے, اور شہری جو ہے اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو ہے وہ. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.